خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میرا نام پاسٹر جارج وحید ہے اور میں سب سے پہلے تھوڑی سی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ ان دنوں ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے اس کو مل کر دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے مل کر سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جو 8واں باب ہے اس میں ڈائیو کریں گے، مل کر سیکھیں گے کہ یہاں رسول جو ہے وہ اب ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم نے 7ویں باب میں اس کی گفتگو سنی، اس کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو اسٹرگل ہے، اس پر نظر ڈالی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح رسول جو ہے وہ شریعت میں رہتے ہوئے شریعت سے کس طرح نجات انسان پا سکتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے اور اس بڑا مایوس ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت صرف گناہ کی پہچان جو ہے وہ بخشتی ہے، لیکن کسی بھی طرح شریعت جو ہے وہ انسان کو اس سچویشن میں جس میں وہ ہے اس میں سے نکال نہیں سکتی۔ مطلب جو گناہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے وہ کس طرح اس سے نجات پائے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے کہ رسول ایک ایسی سٹیج پر آ جاتا ہے جہاں اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس گناہ سے آزادی کی جو پاور اور اتھارٹی ہے وہ نہیں ہے، کہ شریعت نے صرف گناہ کی پہچان بخشی۔ تو اس کو ہم نے دیکھا اور پھر کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ اب شریعت سے باہر دیکھتا ہے اور دوسرے ایک ریسورس۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مل کر دیکھا، اس کو پڑھا جانا کہ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اسے خدا اور انسان کے درمیان میں یسوع جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور کس طرح یسوع اس رستے کو کلیئر کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کے ساتھ گناہ کی وجہ سے جدا ہوا اور اس کا میل نہیں تھا۔ یہ ساری گفتگو ہم نے کی، اور اگر آپ نے ابھی تک اسٹڈی کو اس کے جو پیغامات ہیں نہیں دیکھے سنے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوب یا فیس بک پر جا کے لیسٹر منسٹریز یا نیو کونینٹ چرچ یا جارج وحید فیس بک پر جا کے آپ ان پیغامات کو ضرور سنیں۔ کوئی بھی سیریز جو ہوتی ہے میرے عزیزو، جب تک اس کو پہلے سبق سے نہ فالو کیا جائے تو اس کی اس طرح سمجھ نہیں آتی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور آپ جو اس سلسلے کے سارے پچھلے 7 پیغامات ہیں، ایکچولی تقریباً ہر جو چیپٹر ہے اس کو 2 حصوں میں ہم نے پارٹ 1 اور 2 میں پریزنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ اتنا ڈیپتھ کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 2 جو ہیں منیمم پارٹس وہ تو ضروری ہیں۔ آج ہم 8ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ ہم 10 منٹ لیٹ تھے، تو پھر ہم شاید 10 منٹ اور آگے چلے جائیں گے اپنے ٹائم پر۔ تو رومیو کے خط کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے ہدایت، رہنمائی اور لیاقت جو ہے وہ مانگے، تاکہ وہ ہماری مدد کرے کہ اس کے کلام کو جب ہم کھولتے ہیں تو پاک روح کی مدد اور ہدایت سے ان گہرائیوں کو، ان مکاشفات کو سمجھے۔ آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم خداوند تیرے کلام کو کھولیں۔ آئے خداوند ہم تیرے کلام کو تیری مدد، رہنمائی اور رضا سے ہی خداوند کھولتے ہیں۔ پاک روح کی رہنمائی سے پڑھتے، سیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور پھر خداوند تیرا پاک روح ہے جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کلام کے مطابق خداوندہ بسر کریں۔ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج اس وقت جتنے بھی تیرے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یا بعد میں اس میسج کو خداوند وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں تو سب کو بڑی برکت دینا، اور خاص کر ان ممالک میں جہاں وہ خداوندہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن کے ذریعے سنتے ہیں تو ان کے وسائل میں اور برکت دے۔ آئے خداوند تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، تیرے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے میرے عزیزوں کہ اس وقت یہ جو سیریز ہے اس کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 7ویں باب میں ہم تھے تو ہم نے، اور 7ویں باب سے پہلے جتنے بھی ابواب میں، وہاں ہمیں رسول جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ
बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से अब 8वें बाब को शुरू करता है। और जो खुदा के खादम हैं वो इस बात से वाकिफ है कि ये पूरी बाइबल पैदाइश से लेकर मकाशफा तक रोमियो की खत कलीसिया को जो ये खत लिखा गया, ये जो 8वां बाब है चैप्टर 8, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से रुख जो है वो सारा तब्दील करता है, न्यू डायरेक्शन में लेके हमें जाता है। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, रोमियो का खत और इब्रानियों का खत, ये वो तीन सॉलिड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से भरपूर खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम पैदाइश के पहले लफ्ज से मकाशफा के आखिरी लफ्ज तक है। लेकिन जब हम डॉक्ट्रिनल बात करते हैं तो आई थिंक दीज 3 बुक्स आर वेयर यू फाइंड ऑल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। तो आए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ जो रोमियो की कलीसिया का 8वां चैप्टर है जो खत लिखा गया उसको निकाले। मैं चंद आयत आपके लिए पढ़ता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में 8वें बाब की पहली आयत से यूं है, बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। पहली दफा वो बगैर किसी कंडेमिनेशन के, सजा के, मजम्मत के बात शुरू करता है। बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबसे कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। और चौथी आयत है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और 5वीं आयत है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के मुताबिक चलते हैं, के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। खुदा उनकी बरकत उस कलाम के पढ़े सुने जाने पर। मैंने 5 आयत आपके सामने तलावत की हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे पास जितना भी वक्त है उसके मुताबिक हम आज का जो सबक है इसको कंप्लीट करें। जब हम इस 8वें बाब की तरफ आते हैं तो मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि हमने देखा कि रसूल 7वें बाब में जिस्मानी और रूहानी शख्स का जो मुआजना है वो करता है, और जिस्म में होते हुए किस तरह नई रूह पाने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद जिस्म के तकाजे जो हैं उनके साथ जंग करता हुआ नजर आता है। और शरीयत जो गुनाह की पहचान तो करवाती है लेकिन गुनाह से निकलने का रास्ता नहीं बताती, उस पर बात करता है। और रसूल अपनी इस जद्दोजहद में, इस स्ट्रगल में वो एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जहां उसे शरीयत के वसीला से रूहानी रहाई के अलावा रूहानी रहाई के लिए बाहर देखना पड़ता है। और फिर जैसा कि मैंने अर्ज की कि इसका जवाब खुदा उसे देता है। तो ये 7वें बाब का लुबेलुबाब था। अब ये जो 8वां चैप्टर है ये दरअसल 7वें बाब का ही जवाब है। 7वें बाब में जो बातें हैं उनका जवाब देता है और तफसील के साथ वो बात करता है। तो हम इस 8वें बाब में जरा तफसील के साथ जिस चैलेंजेस में रसूल गुजरा, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखा, वहां पर जो हो रहा था, और आज मेरे और आपके लिए जो सबक है उसमें से हम सीखते हैं। रसूल हमें यहां पर जो कमेंडेशन है, मजम्मत जो है, कंडेम जो हुआ, उसके बारे में बात करता है कि हमारे ऊपर सजा का हुक्म है या नहीं। जब आयत 1 को हम देखते हैं, मेरे साथ रहिए और कलाम मुकद्दस खोल के रखें। लिखा हुआ है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बड़े ही एक खुशखबरी के साथ, गुड न्यूज के साथ रसूल जो है इस 8वें चैप्टर को शुरू करता है। और ये ऐलान जो है कि जो मसीह में है उन पर अब सजा का हुक्म नहीं, ये ऐलान है, ये एक अनाउंसमेंट है
یہ خوشخبری کا اعلان ہے، خوشخبری کی اناؤنسمنٹ ہے. کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں، جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں. یہ ان کے لیے ہے میرے عزیزو. اور رسول جو ہے ان کو یہ خوشخبری سناتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جو جسم کے رستہ پر نہیں بلکہ روح کے رستہ پر چلتے ہیں. اور چونکہ خدا یسوع کو کنڈیم نہیں کرتا یا مذمت نہیں کرتا یا سزا کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور ابھی یہ ڈیپ تھیالوجی، ابھی اس پر ابھی بات کریں گے. لہذا رسول یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نے مسیح کو کنڈیم نہیں کیا تو جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کو کیسے کنڈیم کرے گا، وہ ان کو کیسے سزا دے گا. ہم شریعت کے مطابق جو سزا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے میرے عزیزو، کیونکہ جو مسیح ہے وہ سر ہے اور باقی جسم کے اعضاء ہیں. تو اگر سر جو ہے، جو ہیڈ ہے، اگر کنڈیمنیشن اس کے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے بھی نہیں. اصل میں رسول یہاں پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے کہ میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کیوں ہم پر اب سزا کا حکم نہیں. میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا. رسول اصل میں یہ بات کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی پانی میں اترتا ہے، اس کا سر پانی سے اوپر ہے، تو ہم اسے ڈوبا ہوا شخص نہیں کہہ سکتے. اس کا سر جو ہے ابھی پانی سے باہر ہے. لہذا کوئی بھی شخص جو مسیح میں آ جاتا ہے وہ میرے عزیزو اب شریعت کی غلامی سے نکل آیا ہے. لہذا اب اس پر شریعت کی طرف سے جو سزا ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جو یسوع میں آ جاتا ہے، ایمان میں آ جاتا ہے، اس کا پھر خدا کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ایسا روحانی اتحاد ہو جاتا ہے، ایک ایسی یونین میں وہ شخص آ جاتا ہے جو پھر اس کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہی کچھ ایکچولی وہاں پر رومیو کی کلیسیاؤں میں ہو رہا تھا. وہ لوگ جو مسیحیت میں آگے وہ شریعت کو بھی ساتھ رکھتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ خط لکھنے کی ضرورت پڑی، اور جو بدعتیں اور ہیرسی پیدا ہو رہی تھی اس کی وجہ سے رسول نے یہ خط لکھا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور آج بھی سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مسیح میں آنے کے بعد شریعت کے تحت جو ہماری پہلی حالت تھی اب اس سے ہماری حالت بہتر ہو گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول ایسی بات نہیں کہہ رہا. رسول یہاں یہ کہہ رہا کہ ہماری حالت بہتر نہیں ہوئی بلکہ ہماری حالت کمپلیٹ ہوئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیوں ہے رسول یہ لکھتا ہے؟ کیونکہ جس طرح اس وقت جو مسیحیت میں آئے وہ ساتھ شریعت کی بھی پریکٹس کرتے تھے، بالکل اسی طرح آج بھی مختلف جگہ پر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پریکٹس میں وہ ہیں جو کسی بھی طرح ایماندار کے لیے زیبا نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے. اس لیے رسول کہتا ہے ہم بہتر نہیں، ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں. مسیح میں آ کر نیا انسان جب ہم بن جاتے ہیں، نئی روح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم مکمل ہو جاتے ہیں. اب ہم 100% شریعت کی غلامی سے نکل آئے ہیں اور ہمیں اس کی کسی بھی طرح ضرورت نہیں ہے. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع نے شریعت کو منسوخ کیا بلکہ اسے پورا کیا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ شریعت نیکسٹ لیول پر خداوند ایکچولی لے کے آتے ہیں. جو رسول بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت جس طرح گناہ کی پہچان دیتی ہے، رہائی نہیں دیتی، اس حوالے سے اس بیک گراؤنڈ میں پالوس رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اب بہتر نہیں بلکہ مکمل ہو گئے ہیں. لہٰذا اب ہم شریعت کی غلامی سے نکل کر مسیح کی غلامی میں آ گئے ہیں. 8واں باب، جیسا کہ میں نے کہا 7ویں باب کا جواب ہے. اور یہاں پر ہم دوسری آیت جو ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا.
इसलिए कि जो काम शरीयत के सबसे कमजोर होकर ना कर सके वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। मैं कोशिश करूंगा कि हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आयत को इकट्ठा देखें, क्योंकि ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। गौर से सुने, बाइबल को खोल कर रखें। यहां पर जो चंद बातें जो हम देखते हैं वो ये हैं कि अगर हम मसीह के साथ नहीं चल रहे, मसीह के साथ उसकी पहचान और रूह का तजर्बा होने के बावजूद उसके साथ नहीं चल रहे, तो फिर क्या है? फिर अभी तक हम जिस्मानी हैं। और अगर हम मसीह में नहीं, तो फिर हमें सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वां बाब जो है उसमें यही बताया गया है कि हम यीशु की तरफ देखते रहे। वो अपना मकाम, यानी कि पालूस रसूल जो अपना मकाम है किस तरह पाता है? जब उसने शरीयत से बाहर देखा, जब मैं और आप मेरे अजीजों खुदावन की सलीब पर ध्यान लगा कर रखते हैं, जब हमारा ये ईमान है कि सिर्फ यीशु मसीह ही इंसान को निजात देता है, तो फिर हम पर सजा का हुक्म नहीं होता। वरना शरीयत जो है उसने हम पर सजा का हुक्म जारी कर दिया हुआ है मेरे अजीजों। आगे चलते हैं। 8वां बाब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो बगैर मजम्मत के, बगैर सजा का जिक्र किए शुरू होता है, बल्कि वो खुशखबरी का पैगाम है कि सजा हमें नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जो जुदाई है वो खत्म हो गई और मसीह के साथ हमेशा रहने की जो खुशखबरी है उस पर यह बाब जो है वो कंप्लीट होता है। लिहाजा हमारी जगह वो जो है अपनी जान देता है और उस पर सजा का हुक्म हुआ, और इस तरह वो सजा जिसके मैं और आप हकदार थे उसको खुदा ने उस जगह रखा ताकि मैं और आप जो है वो महफूज रहे। मसीह में आने के बाद मेरे अजीजों क्या होता है? मसीह में आने के बाद उसने मुझे और आपको अब उसमें शरीक कर लिया है, उस आजादी में, क्योंकि शरीयत जो है वो गुनाह की निशानदेही करती है, और अब मसीह यीशु हमें वो जो गुनाह हमारे अंदर छुपा बैठा है, जिस पर मैंने पिछले चैप्टर में बात की, उससे रहाई बख्शता है। मतलब मौत की शरीयत से रहाई दी। अगर आप पढ़े यहां पर दूसरे बाब की दूसरा हिस्सा आयत का, 8वें बाब की दूसरी आयत का हिस्सा, तो यहां पर मौत की शरीयत से आजाद। अब मौत की शरीयत क्या है? जब हम इस पर बात करते हैं तो हम देखेंगे कि मौत की शरीयत क्या है। मतलब इसका यह है मेरे अजीजों कि कलाम में लिखा है कि मौत की शरीयत से रहाई दी। मौत की शरीयत इस तरह है, मैं आपको बताता हूं। शरीयत ने क्या किया? उसने गुनाह की पहचान बख्शी, लेकिन शरीयत जो है मौत से रहाई नहीं दे सकती। जब ये बदन खत्म होता है तो हम वी आर गॉन, फिनिश, ठीक है। शरीयत ने गुनाह की पहचान बख्शी, लेकिन गुनाह की वजह से जो ये बदन है जब खत्म होता है तो ये होता है जो रसूल कह रहा है, शरीयत की मौत। इस तरह हम जो अब्दी मौत है इस बदन में, उसकी वजह से खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं, इस जिंदगी के बाद की जिंदगी जो है उसकी उम्मीद नहीं अगर कोई शरीयत के मुताबिक है। इसलिए से शरीयत की मौत कहा गया है मेरे अजीजों, क्योंकि बेसिकली ये गुनाह की पहचान तो करवाती है, लेकिन गुनाह की वजह से उस हालत में मौत से नहीं बचा सकती। लेकिन मसीह में, गौर से सुने, लेकिन मसीह में नई रूह और जिंदगी पाने से हम एक नई शरीयत जो है उसमें आ जाते हैं, और ये नई शरीयत जो है यानी कि जिंदगी में हम दाखिल हो जाते हैं। इस तरह हम मौत की शरीयत जो है उसमें से निकलकर मसीह यीशु की मार्फत नई शरीयत जो पाक रूह से हमें मिलती है
उसमें गुनाह और मौत जो है दोनों से आजादी हासिल कर सकते हैं। बदनी तौर पर तो हम खत्म होंगे, लेकिन इस बदन के खत्म होने के बाद हमें एक उम्मीद है उस हमेशा की जिंदगी की। इसको कहा गया है नई रूह की जिंदगी। और इस तरह जो मौत यानी कि शरीयत की जो मौत है वो खत्म होगी, वाकया होगी, और हम अब नई जिंदगी यानी कि मसीह में आने के बाद हमेशा की जिंदगी जो है उसमें दाखिल हो जाते हैं। और इस तरह हम गुनाह और मौत से आजाद होते हैं। मसीह गुनाह ना करके अब गुनाह के तसलसल से महफूज रहता है। हम ईमानदार जो है अब हमारे खिलाफ शरीयत जो है देर पा ताकत जो है वो नहीं रखती। हम अपने गुनाह के जुर्म से अब आजाद हैं। आपको जब 7वें बाब में बात कर रहे थे या उससे पहले के जो अबवाब हैं गौर करें तो वहां पर शरीयत की गुनाह की पहचान देने की वजह से इंसान अपने आप में एक मुजरम जो है, एक जुर्मदार जो है अपने आप को समझता है, क्योंकि शरीयत उसे कंडेम करती है। लेकिन शरीयत रहाई देने का कोई रास्ता नहीं बताती, इसलिए इंसान एक मुजरम की तरह अपने आप को महसूस करता है। और यही रसूल कहता है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम नई रूह और नयापन हम में आ जाता है, तो अब हम अपने अंदर अपने आप को मुजरम नहीं समझते। वो जो मुजरम होने का एहसास है वो फिर खत्म हो जाता है। आपके अंदर जिंदगी, हमेशा की जिंदगी जो है उसको हासिल करना है, उसमें चलने की एक नई जो उमंग और लगन जो है वो फिर आ जाती है मेरे अजीजों। वो जो मायूसी थी वो फिर खत्म हो जाती है। अब शरीयत जो है हम पर अपनी अथॉरिटी और पावर नहीं रखती, क्योंकि जो काम शरीयत ना कर सकी खुदा ने किया। यहां पर लिखा है जो काम शरीयत ना कर सकी खुदा ने किया। शरीयत ने चंद काम किए, मसलन शरीयत बहुत सारे कामों के अलावा चंद काम जो शरीयत कर सकती है मैं बताता हूं आपको। शरीयत हमारी रहनुमाई करती है, खुदा के किरदार के बारे में बताती है, और शरीयत हमें अखलाकियात से आगाह करती है। जब शरीयत ने कहा यह गुनाह है, लालच करना गुनाह है, ज़नाकारी गुनाह है, खून करना गुनाह है, तो क्या हुआ? शरीयत ने अखलाकियात का एक जो स्टैंडर्ड है वो दिया, और इस तरह खुद शरीयत ने इस अखलाकियात का स्टैंडर्ड देने की वजह से खुदा का जो पाकीज़ा करैक्टर है उसके बारे में हमें आगाह किया कि खुदा को गुनाह से नफरत है, वो होली है, पाक है। लेकिन इंसान किस तरह होली और पाक कर बन सकता है या हो सकता है, शरीयत के पास इसका कोई जवाब नहीं था मेरे अज़ीज़ों। शरीयत ने सिर्फ पहचान बख्शी। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो है उसके पास इसका जवाब है, और वो हमें किस तरह इस जुर्म से रहाई और आजादी देता है मेरे अज़ीज़ों। कमजोर जिस्म होने और गुनाहगार होने की वजह से खुदा को खुश रखने के बारे में शरीयत बताती है, लेकिन शरीयत के पास ताकत और पावर नहीं कि वो इंसान को गुनाह के बदन में खुदा को खुश रखने की कोई राह दिखाए। शरीयत ये तो बताती है कि ये गुनाह है, इसका मतलब है कि खुदा होली और पाक है और उसे गुनाह पसंद नहीं। लेकिन शरीयत ये नहीं बताती कि इस जिस्म में रहते हुए खुदा को इंसान किस तरह खुश रख सकता है, क्योंकि ये जो जिस्म है ये करप्ट है। गौर से सुने, ये जिस्म जो है ये करप्ट है, तो इस करप्ट जिस्म में रहते हुए शरीयत के पास कोई जवाब नहीं कि इंसान खुदा को किस तरह खुश रखे। किसी स्कॉलर ने कहा है, गौर से सुने, मूसा की शरीयत जो है वो दुरुस्त है लेकिन उसमें बचाने की ताकत नहीं। गुनाह की जो शरीयत है उसमें ताकत है लेकिन वो दुरुस्त नहीं। मतलब गुनाह जो है वो एक पावरफुल फोर्स है लेकिन वो दुरुस्त नहीं, गलत है। और जो मूसा की शरीयत है वो दुरुस्त है लेकिन वो एक फोर्स नहीं। लेकिन पाक रूह की जो शरीयत है मेरे अजीजों, वो दुरुस्त भी है और बचाने की ताकत भी रखती है। ये फर्क है मेरे अजीजों।
ये ऐसे ही है जैसे जब सूरज चमके तो अगर कोई नाबीना शख्स हो तो सूरज उस पर भी उसी तरह चमकता है जिस तरह जिसकी बनाई है, जो देख सकता है उस पर चमकता है। लेकिन सूरज नाबीना शख्स को देखने की कुव्वत मुहैया नहीं कर सकता। यही शरीयत का हाल था। शरीयत ने असूल तो सारे बना दिए, 613 हुक्म भी दे दिए, लेकिन शरीयत के पास इंसान को बचाने के लिए कोई प्रोग्राम और प्लान नहीं था। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि शरीयत कमजोर है क्योंकि उसका काम जिस्म के लिए है। मैंने जब यहां आपके लिए ये जो आयत दूसरी आयत से चौथी आयत तक पढ़ी तो यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबसे कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। और फिर चौथी आयत में लिखा है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। गौर से सुने, शरीयत कमजोर है क्योंकि उसका काम जो है वो जिस्म के लिए है। शरीयत जो है वो जिस्म के लिए लागू हुई ताकि वो इंसान के जिस्म में से गुनाह की पहचान करवा कर उसको जो गुनाह है उसकी पहचान बख्शे। इस तरह वो जिस्मानी शख्स के लिए है, और जिस्मानी शख्स जो है या ये जो जिस्म है आप कह लें वो एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन रूह की शरीयत जो है जिस्मानी को रूहानी में तब्दील नहीं कर सकती मेरे अजीजों। लेकिन मसीह ने अपनी सलीब पर जान देकर उस पुराने नफ्स को खत्म किया और रूहानी जिंदगी जो है वो अब इंसान मसीह से पाता है। चौथी आयत को अगर देखें जहां शरीयत का तकाजा लिखा हुआ है कि बदनी तकाजा, तो उस पर बात करते हैं। रूहानी आदमी जिस्म के तकाजे किस तरह पूरे करता है मेरे अजीजों, क्योंकि रूहानी है वो। अगर आप देखें, अगर एक आम का दरख्त हो तो आप गवर्नमेंट के किसी भी हुक्म से या लॉ से किसी भी तरह कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो आम का दरख्त है वो हुकूमती हुक्म के मुताबिक फल दे और उनके हुक्म के मुताबिक जिस तरह वो चाहते हैं वक्त पर फल दे। ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए कि जो आम का दरख्त है, जो मैंगो का दरख्त है, वो अपनी मर्जी से अपने वक्त पर फल देगा। बिल्कुल उसी तरह जब कोई रूहानियत में मसीह के साथ यकजा हो जाता है तो फिर उसके ये बदन जो में से जो काम है वो मेरे अजीजों रूहानी फल लाएंगे। फिर किसी भी तरह, यहां जो मैंने आपको मिसाल दी है हुकूमती किसी भी नोटिस की, किसी भी अमेंडमेंट की, उसका मतलब मैंने इस तरह आपके लिए रखा है कि फिर क्या होता है कि जब हम रूहानियत में मसीह के साथ चलते हैं तो फिर ये जिस्म के जो तकाजे, बदनी तकाजे हैं, जिस्मानी हैं, वो जो हमें खुदा से दूर कर सकते हैं, हम उनकी बात करें। आगे चलकर हम और जो बदन की जरूरियात हैं उन पर बात करेंगे। मैं बात ये कर रहा हूं कि फिर जब हम रूहानियत में मसीह के साथ चलते हैं तो फिर हमारे बदन से रूहानी फल जो है वो नजर आते हैं। हमारी जिंदगी जो है फिर रूहानी नजर आती है। ये है जिस्म के तकाजों की बात। रूहानी आदमी जब नई रूह में मसीह में चलता है तो फिर उसके जिस्म से रूहानी फल जो हैं वो पैदा होते हैं या नजर आते हैं। फिर वो रूह की शरीयत के तकाजे पूरे करता है मेरे अजीजों। मैं एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो वाजे करना चाहता हूं ताकि जो क्लैरिटी है वो रहे। शरीयत जो है मेरे अजीजों, शरीयत का बदन है। वो कैसे? जिस्मानी बदन शरीयत का बदन है, क्योंकि शरीयत बदन के जरिए गुनाह की पहचान करवाती है और बदन को सिग्नल देती है कि यह काम गुनाह है। गौर से सुने, जब मैं इसे लिख रहा था तो मैं
खुदावंद का बड़ा शुक्र गुजार हूं इस समझ के लिए। दोबारा रिपीट करता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। शरीयत का बदन है, जिस्मानी बदन शरीयत का बदन है, क्योंकि शरीयत बदन के जरिए गुनाह की पहचान करवाती है और बदन को सिग्नल देती है कि ये काम गुनाह है, और गुनाह जो बदन में छुपा है वो फिर उस पर एक्ट करता है। मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को भेजकर शरीयत को, जो गुनाह, शरीयत और गुनाह को शिकस्त दी। ये सिर्फ गुनाह का पता ही बताती थी, गुनाह को शिकस्त देने के लिए कोई वेपन और हथियार इंसान को नहीं देती थी। खुदा ने सलीब पर गुनाहगार जिस्म की शक्ल में, now this is a very deep theological understanding that we should have, बड़ा जरूरी है कि हम इस नुक्ते को समझें, और वो ये है, और मैं कुछ बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि हमें और बेहतर और अच्छी तौर पर समझ आ जाए। गौर से सुने, खुदा ने सलीब पर गुनाहगार जिस्म की शक्ल में भेजने से अपने बेटे के जरिए गुनाह के जिस्म को शिकस्त दी। मतलब इस जिस्म को शिकस्त दी। वो खुद तो गुनाह से पाक था, हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करें, वो खुद तो गुनाह से पाक था, लेकिन उसने इस बदन को ले लिया ताकि सलीब पर हमेशा के लिए उस अबलीस को शिकस्त दे। दोबारा मैं मुख्तलिफ तरह से बताने की कोशिश करता। याद रखें, यीशु मसीह यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, यहां पर लिखा हुआ है तीसरी आयत के आखिरी हिस्से में, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। गौर से सुने, यीशु गुनाह आलूदा नहीं था, बल्कि उसने उस गुनाह आलूदा जिस्म में आकर हमें रहाई दी। अगरचे वो इंसान था, लेकिन वो आप में गुनाहगार नहीं था मेरे अजीजों। दरअसल उसने जिस्म को क्या किया? कंडेम किया। जिस सजा के मुस्तहिक मैं और आप थे, वो सजा उसने बर्दाश्त की। इस तरह यीशु ने शरीयत के रास्त और दुरुस्त जो जरूरत थी उसको वो पूरा करता है, क्योंकि वो फर्मा बरदार रहा। अब हम उसमें कायम रहकर शरीयत की फर्मा बरदारी पूरा करते हैं। मतलब यीशु ने वो जो सजा है, ये जो बदन है, ये बजाते खुद एक गुनाहगार बदन है। उसमें गुनाह नहीं था, वो पाक था, लेकिन वो इस बदन में आ गया ताकि शरीयत के तकाजे को पूरा करे। क्योंकि याद रखें, जानवरों की कुर्बानी किसी भी तरह हमें रहाई नहीं दे सकती थी, इसलिए वो बेऐब बरा जो है, वो इस जिस्म में होकर अपने बदन की कुर्बानी जो है अपने बाप को गुजरानता है, और इस तरह वो हमारे गुनाहों को लेकर जब सलीब पर चढ़ गया, इस तरह उसने जो शरीयत का तकाजा था बदन में वो पूरा करता है, और हमें यानी मुझे और आपको वो इस सजा से बचाता है। आयत 5 से 8 तक हम देखते हैं। जब हम 5वीं आयत को देखते हैं मेरे अजीजों, तो यहां लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हम 8वीं आयत तक चलेंगे। अब हमने यहां तक तो सीख लिया कि किस तरह शरीयत के तकाजे को पूरा करने के लिए वो इस बदन में आया, और इस बदन को जब वो सलीब पर, ये बदन जब मसलूब होता है, तो वो शरीयत के तकाजों को पूरा करते हुए हमें वो सजा जिसके हम लायक थे उससे बचाता है, और हमारी खातर वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। अब जब हम 5वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां बिल्कुल सादा, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में। रसूल ने, खुदावंद के बंदा पालूस ने
बड़ी सादगी के साथ सिंपल सी एक गाइडलाइन जो है वो लिखी है, और बड़ा आसान है इसको समझना, क्योंकि वो हमें एक तरीका बताता है कि किस तरह एक रूहानी को चलना चाहिए। अब आया हम रूह के मुताबिक चलते हैं या जिस्म के मुताबिक, यहां जरूरी है जो बात हम सीखें वो ये है, गौर से सुने, वो ये है कि हमारा ये जो जहन है, हमारा ये जो दिमाग है, ये दरअसल एक मैदान जंग की तरह है। ये हमारा जो जहन है, क्योंकि इसमें एक जंग होती है, इसमें ख्यालात जो हैं वो आपस में जंग कर रहे हैं। जहन कहता है ये बात गलत है, फिर उसी जहन में एक बात आती नहीं ये बात दुरुस्त है, कुछ नहीं होगा। इस तरह जब जंग होती है तो वो जो जहां जंग होती है उसको मैदान जंग कहते हैं। वो मैदान है, हमारा जो दिमाग है, जहन जो है, ये मैदान जंग की तरह है। ये एक ऐसा मैदान है जहां हर लम्हा हर वक्त जिस्म की और रूहानी, जिस्मानी इंसान की, रूहानी इंसान की, कार्नल क्रिश्चियन, स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, दोनों की जो जंग है मेरे अजीजों वो जारी है। और इसलिए रसूल कहता है कि जो रूह के मुताबिक चलते हैं वो जिस्म की ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, और जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं वो जिस्म की रगबतों और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अब जरूरी जो बात है वो ये है कि हमारा जहन कहां पर है, हमारा जो मेंटली जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी मेंटली वो कैसी है। क्योंकि अगर ये जहन मैदान जंग है तो जरूर है कि हम इसको कंट्रोल करें, फिर हम जंग जीत सकते हैं। और हमारी जंग चूंकि रूहानी जो वो कुव्वतें जो शैतानी कुव्वतें हैं उनके अगेंस्ट हैं, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। और यही बात रसूल कहता है कि हम अपनी जो हिकमत अमली है उसको किस तरह तजवीज करते हैं, उसको किस तरह हम तरतीब देते हैं मेरे अजीजों। जहां जिस्म और रूह आपस में लड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए, गौर से सुने, अब हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हर शख्स जो जिस्म के हिसाब से सोचता है गलत सोचता है। उसकी वजह यह है कभी कभी कुछ लोग अभी उस लेवल पर, रूहानियत के उस मेयार पर नहीं पहुंचते, इसलिए उनकी जो जंग है वो जारी है बदन के इन सोचों और ख्यालों के साथ। मिसाल के तौर पर जब पतरस मसीह को कहता है कि वो सलीब पर ना जाए तो क्या होता है, पतरस अपनी जगह सही सोच रहा है, गलत नहीं सोच रहा, लेकिन वो जिस्म की ख्याल और सोच के मुताबिक सोच रहा होता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, अगर आप मत्ती की इंजील में देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके 16वें बाब की 23वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, मत्ती रसूल की इंजील 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पतरस ने अपनी तरफ से सही कहा, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर सोच रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शैतान को डांटते हैं। मेरे अजीजों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हर शख्स गलत सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक कुछ शायद रूहानियत के उस म्यार तक नहीं पहुंचे, उनकी जिंदगियों में जो तब्दीली आई है उसमें अभी तक वो मैच्योरिटी नहीं है। लिहाजा हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप को रूहानियत का चैंपियन नहीं मानना चाहिए। हम रोज इस स्ट्रगल में गुजरते हैं और सीखते हैं, और जो बहन भाई शायद अभी उस लेवल पर नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत दफा लोग दूसरों को अपने इल्म की वजह से कमतर जानते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जो इल्म उसने बख्शा, और मेरी खुदा के साथ जिस लेवल पर वॉक है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और मदद करनी चाहिए अपने दूसरे बहन भाइयों की, ताकि वो भी रूहानियत के आला म्यार पर आ सके। यहां पर यही सबक खुदावन हमें बख्शता है मेरे अजीजों।
रूह के मुताबिक चलने का मतलब है हमारी जिंदगी रूहानी जिंदगी का नमूना नजर आए। अगर कोई ये कहता है कि मैं मसीह के साथ चलता हूं, तो फिर हमारी जिंदगी में वो रूहानियत नजर आनी चाहिए। हमारी जिंदगी एक नमूना होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल होनी चाहिए मेरे अजीजों। यही रसूल यहां पर कहता है। और हमारी जो वाक है मसीह के साथ वो मुसलसल है। हम जिंदगी को कुव्वत के साथ मेरे अजीजों, अथॉरिटी के साथ, वो पावर जो उसने मुझे और आपको दी है उस पर इस तरह काम करें, इस तरह नमूना पेश करें, इस तरह की जिंदगी बसर करें कि हम रूहानियत की जो महराज है उस तक पहुंच सके। और उसके लिए मेरे अजीजों हमें सिर्फ यीशु पर ईमान लाने और उसको शख्सी निजात दहिंदा मानने और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी जो है बसर करने से होगा। बहुत दफा यह भी देखा गया है कि, और खुसूसन आजकल मेरे साथ जाती तजर्बा भी हुआ है, यहां पर जब रसूल इस बात को लिखता है मेरे अजीजों, तो उसका मतलब यह है कि हम जब मसीह में आ जाते हैं मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो हम उसकी शागिर्दी में आ जाते हैं। हम शरीयत की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। अब उसका जो रूह है, जब आप तौबा कर लेते हैं, खुदावंद का रूह आपके अंदर आ गया है। खुदावंद का रूह पहले से आपके अंदर है। याद रखें, पाक रूह आप में है। हम पाक रूह को एक्टिवेट करते हैं जब हम तौबा करके यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं। और फिर रूह जो है वो हमारी मदद करता है, फिर रूह हमारी रहनुमाई करता है मेरे अजीजों। फिर हमारा जो ख्याल है, हमारी सोचें जो है वो फिर पाक रूह की रहनुमाई में चलती हैं। फिर हमारा ज़हन पाक रूह की रहनुमाई में सोचता है। ये जो 8वीं आयत है, ये जो 5वीं आयत से 9वीं आयत तक जो मैंने अभी पढ़ा, अगर आप इसे गौर करें तो यहां पर हमें 6ठी आयत में एक बात मिलती है, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। जब कोई खुदावन के साथ चलता है मेरे अजीजों, तो फिर वो खुद ब खुद खुदावन का शागिर्द है। आजकल एक बड़ी बात ये कही जाती है, सुनने में आती है, मुझे भी किसी ने कहा, और कुछ जो कलीसियाएं हैं बड़ी इस प्रकार बंद हैं कि आपसे सवाल हो सकता है कि क्या आपको पाक रूह का एक्सपीरियंस है? क्या आप गैर जुबान बोलते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे खुदा के लोगों को जानता हूं जो ये ईमान रखते हैं कि अगर आप गैर जुबान नहीं बोलते तो आप मसीही नहीं हैं। वो कहते हैं ये जो बपतिस्मा है दैट्स नथिंग। जब तक आप गैर जुबान नहीं बोलते, आप एक्चुअली तब्दील नहीं हुए, नई पैदाइश का एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ। लेकिन रसूल यहां पर जो बात कर रहा है ये इससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। जो शख्स यीशु को कबूल करता है, चढ़ जाता है मेरे अजीजों, पाक रूह की जिंदगी में काम करता है। जो शख्स यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मानता है, अपने आप को गुनाहगार मानता है, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मानता है, कलाम मुकद्दस पढ़ता है, दुआ करता है, पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है। ये कहीं भी शर्त नहीं कि आपको गैर जुबान बोलनी आनी चाहिए। हां, खुदा के तोहफे हैं, ये गिफ्ट है मुख्तलिफ तरह के जो खुदा अपने लोगों को बख्शता है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं। इसके लिए इसका बड़ा ख्याल रखें। हमें झूठी रूहानियत से बचना चाहिए। यहां इसका मतलब यही है, पलूस का मतलब यही है कि ये झूठी रूहानियत है कि अगर किसी को ये कहा जाए कि जब तक उसको गैर जुबान नहीं आती वो एक्चुअली सेव्ड नहीं है, बचा नहीं है। खुदावंद का कलाम नहीं कहता। अगर कोई तस्लीम मानता है, आई कैन नॉट हेल्प बट नो वन कैन प्रूव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड कि ये एक कंडीशन है मेरे अजीजों। इसका ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि रसूल जो है वो बड़ा क्लियर यहां पर बात करता है कि अगर आप मसीह यीशु में आ गए हैं, नए बन गए हैं, तो फिर हमारे जो काम हैं वो हमारी जिंदगी से नजर आने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और 9वीं आयत में लिखा है
लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। जब हम मसीह में आते हैं तो उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में है। तो जब हम आप रूहानी हो जाते हैं नया रूह हासिल करने के बाद, तो फिर हमारा ये जो बदन है ये गुनाह की तरफ से हमारे लिए मुर्दा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है हम इस बदन में हैं, बदन की जो जज्बाती जरूरतें हैं वो वाजिब हैं, ये खुदा का इंतजाम है। इसको कंडेम नहीं करता रसूल, ना खुदा कंडेम करता है, बल्कि वो हमारे जिस्म की जरूरतें हैं, खुदा उसमें बरकत देता है। जिस बात पर यहां रसूल जोर दे रहा है कि रूहानी तौर पर बदन की तरफ से मुर्दा होना, मतलब यह है कि फिर हम बदन की वो ख्वाहिशात पूरी नहीं करते जो हमें यीशु से दूर रखती हैं, और जो नई शरीयत हमें मिल गई है उससे हमें दूर रखती है। ये इसका मतलब है रूहानी तौर पर मुर्दा रहना। ऐसे ही है जैसा कि मैंने पिछले इसबाक में कहा, एक बच्चा जो है 2-3 साल का बच्चा, उसे गुनाह का नहीं पता। हमारी हालत फिर उस बच्चे की तरह हो जाती है, हम गुनाह से गाफल हो जाते हैं और हम वो काम करते हैं जो खुदा चाहता है कि हो, क्योंकि अब हम उस गुलामी में से निकलकर आजाद होकर यीशु की गुलामी में आ गए हैं। और फिर जो ये मास्टर है, फिर जैसे वो कहता है फिर हम उसी तरह करते हैं मेरे अजीजों। और हम सिर्फ बदनी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी यीशु की मर्जी और मंशा के मुताबिक फिर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं मेरे अजीजों। जब हम खुदावन के जिंदा कलाम में आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के स्वभाव से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। 11वीं आयत, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अब रसूल यहां पर शुरू में जो उसने खुशखबरी का ऐलान किया, अब उसकी और वजाहत करता है कि जिस तरह वो जिसने अब हमें नया रूह बख्शा है, जब वो उसने उसको मुर्दों में से जिंदा किया और हम जो अब उस पर ईमान ले आए हैं, अब हम भी उसी तरह रूहानी तौर पर जिंदा होते हैं जब उस पर ईमान ले आते हैं मेरे अजीजों। बल्कि रूह जो है, अगर वाकई खुदा का रूह, गौर से सुने, रूह यानी कि अगर वाकई खुदा का रूह हम में बसता है तो रूह कुछ जो है, जो कि वो कसरत के साथ हर ईमानदार को देता है, जब वो हमारे अंदर आ जाए तो हमारी एक नई पैदाइश जो है वो होती है। और अब एक मसीही जो है वो अपने अंदर अब एक प्रिंसिपल रखता है, वो जिस्म से बुलंद और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, मतलब वो उसको कंट्रोल करता है। आपने पालूस के खत में देखा होगा किस तरह वो कहता है कि मैं कहीं इल्म की फरावानी से, इल्म की ज्यादती से फैल ना जाऊं। जिस तरह बहुत सारे लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने बदन को मारते और कूटते हैं, बहुत सारे मसीही भी इसी तरह। एक पाकिस्तान में खास एक डिनोमिनेशन में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जाते हैं इबादत के लिए, और मैंने देखा है वो बड़ी दूर से मील आधा मील अपने जिस्म को तकलीफ देकर लेट कर घुटनों के बल उस जगह जाते हैं। मेरे अजीजों, आप अपने बदन को जितनी मर्जी तकलीफ दें, आप रूहानियत की महराज पर नहीं पहुंच सकते। इसकी मसीहत इजाजत नहीं देती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक जिस्मानी हैं। जो जिस्म में है वो इस तरह की हरकतें करती हैं कि बदन को तकलीफ देने से वो समझते हैं कि वो खुदा को खुश कर रहे हैं। लेकिन रसूल रूहानियत की बात करता है,
हमें रूहानी तौर पर अपने बदन को कंट्रोल में रखना है। रूहानी तौर पर हम अपने बदन को किस तरह तकलीफ देते हैं, किस तरह आप तकलीफ नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि आप किस तरह और प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, सर्टेन टाइम अर्ली मॉर्निंग वो उठकर दुआ करते हैं। इसके अलावा और कलाम मुकद्दस में हमारे सामने इसको कोर्ट की जो जुबान है उसमें केस लॉ कहते हैं कि जो नमूने के तौर पर इस्तेमाल होता है कि किस तरह खुदा के लोग जो थे उन्होंने सर्टेन तरीकों से रूहानी तौर पर अपनी जो रूहानी कद है अपना उसको बढ़ाया खुदा के साथ कुर्बत रखने से। इस तरह आप और ज्यादा उसमें आगे बढ़ते हैं रूहानी तौर पर, ना कि अपने बदन को जख्मी करने से या मारने से या तकलीफ देने से। और ये रसूल यहां पर यही बात जो है वो हमें समझाना चाहता है। और चूंकि बहुत सारे चर्चेस में, रोम की कलीसिया में चूंकि मुख्तलिफ चर्चेस थे, वहां पर इस तरह की प्रैक्टिस थी क्योंकि वो लोग दूसरे मजाहिब से आए थे और उन मजाहिब में भी इस तरह की प्रैक्टिस थी। लिहाजा रसूल हर तरह से इस नई मूवमेंट पे, इस नई पैदाइश का जो एक्सपीरियंस रोमियो की कलीसिया में जो लोग उन्हें हो रहा था, वो उनको हर तरह की उस बिद्दत से, हर तरह की उस चीज से कोशिश कर रहा था कि महफूज रखे जो किसी भी तरह क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट हो। और यही वो आज मुझे और आपको भी बताना चाहता है मेरे अजीजों। जब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी 12वीं आयत, तो यहां पर लिखा हुआ है, बस है भाइयों, हम इसे और चंद मिनटों में हम इसे खत्म करते हैं। लिखा है, बस है भाइयों, हम कर्जदार तो है अगर जिस्म के नहीं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। जब हम बदन को खुश्क रखने की कोशिश करते हैं जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, तो मेरे अजीजों वो जो हमारे अमाल हैं वो हमें मौत की तरफ, हमेशा की तबाही की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब हम खुदावन की मर्जी से उसको खुश करने के काम करते हैं तो उन कामों में सुकून और खुशी है और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। यही बात रसूल जो है मुझे और आपको समझाना चाहता है मेरे अजीजों यहां पर। और हम 14वीं आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। जब भी हम जिस्म के मुताबिक काम करते हैं या जिस्मानी होते हुए कोई काम करते हैं तो उन कामों में मेरे अजीजों एक खौफ, एक खदशा हमेशा होता है। आप एक्सपीरियंस कर ले, कोई भी ऐसा काम जो गलत होता है उसमें एक खौफ, एक खदशा होता है कि क्या होगा, क्योंकि उनको 100% यकीन नहीं। उन्हें यह पता है जो ज़मीर की शरीयत है, जैसा कि मैंने शायद 6 या 7वें बाब में पहले हिस्से में अर्ज किया था, तो वो हमें मलामत करती है क्योंकि इंसान को पता है कि वो गलत है, क्योंकि ये खुदा ने उसके अंदर एक सिफ्त रखी थी जो बाद में शरीयत की वजह से वाज़ेह हुई। लिहाजा उसमें एक खौफ और डर और गुलामी की जो रूह है उससे इंसान फिर गुजरता है। लेकिन जब हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, नए इंसान होकर रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ गुजारते हैं, तो फिर आप कोई भी फैसला करेंगे तो आपके अंदर खौफ और डर नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर और ज्यादा उससे मदद और रहनुमाई की जो रूह है वो तकवीयत पैदा करेगी आपके अंदर, और आप और ज्यादा रूहानी तौर पर निडर होंगे और आप में एक ऐसी प्रैक्टिस पैदा हो जाएगी कि आप रोज बरोज उसमें मैच्योरिटी के नए लेवल पर आएंगे और आप जो बदनी या जिस्मानी शख्स है हमारे अंदर उसको हम और ज्यादा शिकस्त देते हैं और इस तरह हम रूहानियत में और ज्यादा बढ़ते हैं मेरे अजीजों। और जो भी ऐसा करता है, क्योंकि जिस तरह वो अपने बाप का वफादार रहा
اسی طرح جب میں اور آپ وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی ناطے وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ کہتا ہے. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. ہم آج یہاں تک ہی دیکھیں گے، پھر خدا من چاہ تو اگلی دفعہ ہم آگے بڑھیں گے. اب یہاں پر جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، تو پھر کیا ہم جسم کے قرض دار ہیں میرے عزیزو؟ نہیں، بلکہ اگر ہم قرض دار ہیں تو یسوع کے ہیں، جس نے ہمیں اس بدن کی ہمیشہ کی جو موت ہے اس سے چھٹکارا دیا اپنی جان دے کر. صلیب پر اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بچایا ہے. یہی رسول جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روح کے کام سے نجات پاتے ہیں، اور اب ہمارا بڑھنا خداوند میں پاکیزگی کے ساتھ پیروی کرنا جو ہے میرے عزیزو وہ اس کو پسند ہے. وہ ہمیں اپنی روح کے مطابق چلانا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم غلطیوں کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے بیٹے یعنی خدا کی روح کی قیادت میں جب ہم چلتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناکام ہوں گے، بلکہ ہمیں خدا کی جو قیادت ہے، اس کی جو کمانڈمنٹ ہے، اس پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھنا چاہیے. یاد رکھیں، جب بھی کوئی خدا کو اپنا آسمانی باپ مانتا ہے میرے عزیزو، تو خدا کی روح جو ہے اس کی رہنمائی اور ہدایت فرماتی ہے. خداوند نے کبھی یہاں پر خصوصاً یہاں پر کسی ایک قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا ہے جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، جو بھی نیا انسان بنتا ہے، وہ اس کا بیٹا اور بیٹی ہے. کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس 8ویں باب میں جو خوشخبری دی گئی ہے، جس کا اعلان رسول نے کیا، ہم اس کو سمجھیں کہ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس نے صلیب پر ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو لے کر جب وہ چڑھتا ہے تو مار کھائی، اور اس کے مار کھانے سے میرے عزیزو میں نے اور آپ نے شفا پائی. اب ہم شریعت کے متحد نہیں بلکہ یسوع کی غلامی میں آ گئے ہیں. اب وہی ہمارا آقا ہے اور ہم اس کی قیادت میں اس روحانی میدان میں روز بروز آگے بڑھتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی مرضی سے اگلی نشست میں ہم جو 8واں باب ہے اسے کمپلیٹ کریں گے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اور خاص کر خداوند اس خوشخبری کے لیے جس کا اعلان تیرا رسول اس 8ویں باب میں کرتا ہے کہ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ خداوند ہم تجھ میں شریعت کی غلامی سے رہائی پا کر نئے انسان کے طور پر یسوع کی غلامی میں آتے ہیں. اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس جسم میں ہو کر صلیب پر ہمارے گناہوں کو لے کے چڑھ گیا، اور ہم جو سزا کے لائق تھے، جو ہم واجبی طور پر سزا کے لائق تھے، اس کو تیرے بیٹے نے اپنے اوپر لے لیا، اور اس طرح خداوند اس نے اپنی جان دے کر تیرے ساتھ انسان کا میل کروایا. اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے نجات کے اعلیٰ انتظام کے لیے، کیونکہ شریعت کی غلامی میں ممکن نہیں تھا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے. ہمیشہ کی زندگی اس برے کی معرفت ملتی ہے جو بے عیب تھا. اے خداوند ہم تیرا کے درخواست کرتے ہیں کہ ہم یسوع ناصری ہر لمحہ ہر دن اس نئے سفر میں، اس نئی خداوندہ جستجو میں، اس نئی لگن میں جس کو تو نے ہمارے دلوں میں اجاگر کیا ہے، اس میں بڑھے اور ترقی کرے. اے خداوند کاش ہماری زندگیوں میں ایسا ہی ہو. آمین. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو تھوڑی دیر میں نے زیادہ رکھا ہے، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. آئی تھنک وی ہیڈ آور ٹائم، اور خدا من چاہ تو اگلی دفعہ ہم جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس پر بات کریں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو ٹو آل دوز ہو آر لسننگ ٹو اس ان ادر کنٹریز.
and especially in South India and some other places who they use Google to translate, and in Ghana and some other countries. We really appreciate and we bless you and we pray for you. May God bless you and may you grow in Jesus Christ. Thank you so much. खुदावन आपको बहुत बरकत दे. खुदावन ने चाहा तो अगली दफा हम इसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे, और इसके साथ ही खुदावन की मर्जी से हम इसके 16 चैप्टर हैं टोटल. इस तरह हम जो किताब का आधा हिस्सा है वो मुकम्मल कर चुकेंगे, और खुदावन ने चाहा तो हम बहुत जल्द जो रोमियो की स्टडी है उसको कंप्लीट करेंगे. मेरी आपसे एक दफा फिर दरख्वास्त है, प्लीज प्लीज इसको दूसरों के साथ शेयर करें. खुद भी अगर आपसे कोई पैगाम मिस हुआ है उसको जरूर सुनें, जरूर टाइम निकालें. यकीनन आप खुदा उनके कलाम में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.